أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج ہمیں یوم مسلمات منانے کی توفیق مل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اس موقع پر کچھ نصیحت حضرت مسلمات کی طرف سے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم جو یوم مسلمات مناتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ ہم کیوں مناتے ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنص عزیز ہمیں توجہ دلایا ہے پہلے سے۔ جب بھی ہم یوم مسلمات مناتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنص عزیز ہمیشہ ہمیں یاد دلاتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں وہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ جلسہ یوم مسلمات منایا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے، ہم کیوں مناتے ہیں؟ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنص عزیز نے اپنے خطبہ میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے یوم مسلمات کا دن ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے اور اس عہد کو یاد کرنے کے لیے مناتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی سچائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دنیا پر قائم کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ کوئی آپ کی پیدائش یا وفات کا دن نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذریت میں سے ایک شخص کو پیدا کرنے کا نشان دکھلایا تھا جو خاص خصوصیات کا حامل تھا، اور جس نے اسلام کی حقانیت دنیا پر ثابت کرنی تھی، اور اس کے ذریعہ نظام جماعت کے لیے کئی اور ایسے راستے متعین کر دیے گئے کہ جن پہ چلتے ہوئے بعد میں آنے والے بھی ترقی کی منازل طے کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد میں اصل مضمون کی طرف پھرنا چاہتا ہوں۔ آج کے موقع پر جو ہے یہ جو نسخہ ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1956 میں ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، یہ خاص طور پر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ بات بھی پہلے مکرم حتیف صاحب نے یہ ذکر کیا تھا، تو یہ جو نسخہ ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو جولائی 1956 میں نظام خلافت احمدیہ کو تباہ کرنے کی ایک ناپاک سازش پکڑی گئی، جس کا رد عمل یہ ہوا کہ عالمگیر جماعت احمدیہ یکایک جام فروش پر پروانوں کی طرح شمع خلافت کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی، اور خدا کے فضل سے ہر ملک میں تمکنت دین کے ایسے نظارے دیکھنے میں آئے کہ اغیار بھی دنگ رہ گئے۔ انہی ایام میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب سیدنا محمود المصلح الموعود کو 2-3 نومبر 1956 میں کی درمیانی شب کو بذریعہ رویا درج ذیل الفاظ میں قبولیت دعا کا ایک جادو بھر نسخہ
इल्का फरमाया। वो दुआ क्या है? हम कदम कदम पर खुदा ताला की तरफ तवज्जो करते हैं और उसकी रज़ा की जुस्तजू करते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया है कि जिन हालात में हम गुजर रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि जिन हालात में हम गुजर रहे हैं, दुआ के बगैर हम इन मुश्किलात से बाहर नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला की मदद से ही हम इन मुश्किलात से दूर हो सकते हैं। और कबूलियत दुआ के लिए एक बहुत ही उम्दा नुस्खा है जो हज़रत मुस्लिम मौद ने पेश किया है। यही है कि दुआ के साथ हम ये दुआ पढ़ें कि हम कदम कदम पर खुदा ताला की तरफ तवज्जो करते हैं और उसकी रज़ा की जुस्तजू करते हैं। सैयदना मुस्लिम मौद ने 16 नवंबर 1956 को ख़ास इसी आसमानी तोहफ़ा पर रबवा में एक ईमान अफरोज़ खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, और इस इल्काई दुआ के रूहानी नुस्खा पर हकीमाना शान से रोशनी डालने के बाद दुनिया भर के अहमदियों को एक बार फिर पुरजोर तहरीक फरमाई कि इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। चुनांचे इरशाद फरमाया, मुझे खुदा ताला ने ये फ़िक्रे इसलिए बताए हैं कि हमारी जमात के लोग अगर अपनी दुआओं में ये फ़िक्रे कहेंगे तो उनकी दुआएं ज़्यादा कबूल हुआ करेंगे। गोया ये दुआ की कबूलियत का एक इल्काई नुस्खा है, यानी ऐसा नुस्खा है जो बंदा ने ईजाद नहीं की बल्कि खुदा ताला ने उसे ज़ाहिर किया है। और ये बात वाज़ेह है कि जो नुस्खा खुदा ताला खुद बताए वो बंदा के ईजाद करदा नुस्खा से बहुत ज़्यादा कीमती होता है। बस मैंने समझा कि मैं जमात को बता दूं कि अल्लाह ताला का ये मंशा है कि अमलन भी और दुआन भी इन दोनों फ़िक्रों को याद रखा जाए कि हम कदम कदम पर खुदा ताला की तरफ तवज्जो करते हैं और उसके रज़ा की जुस्तजू करते हैं। यानी एक तो ये है कि हर कदम जो हम दुनिया में उठाएं, यानी कोई काम भी करें, उसमें खुदा ताला की तरफ तवज्जो कर लें, जिसके माने ये हैं कि हम खुदा ताला से दुआ कर लें। दूसरा फ़िक्रा है और उसकी रज़ा की जुस्तजू करते हैं, यानी जब कोई काम करते हैं तो देख लेते हैं कि खुदा ताला उससे राज़ी होता है या नहीं। तो जो भी काम करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए क्या अल्लाह ताला उस पर राज़ी हो या नहीं। अल्लाह ताला ने हमारी जमात की दुआओं की कबूलियत के लिए एक रास्ता खोला है। अगर जमात के दोस्त अपनी दुआओं में इन दोनों फ़िक्रों का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी दुआएं पहले से ज़्यादा मकबूल होंगी। हज़रत मुस्लिम मौद ने खुतबा जुमा में इस इल्हामी नुस्खा की असर अंगेज़ तासीरात के फ़लसफ़ा पर रोशनी डालते हुए फरमाया, मुझे बताया गया है कि अगर ये फ़िक्र हमारी जमात के दोस्त पढ़ेंगे तो उनकी दुआएं ज़्यादा कबूल होगी। मैंने बाद में उन पर गौर किया और समझ लिया कि उसमें वाक़या में दुआएं कबूल करने का एक गुर बताया गया है। हम कदम कदम पर खुदा ताला की तरफ तवज्जो करते हैं कि माने ये हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के हर फ़ेल के वक्त खुदा ताला से दुआ करते हैं कि हमारा ये फ़ेल मुबारक हो जाए। अब ये सीधी बात है कि जो शख्स अपने हर फ़ेल के वक्त खुदा ताला से दुआएं करता चला जाएगा, लाज़मन उसकी दुआएं ज़्यादा कबूल होंगी, क्योंकि कदम कदम से मुराद चलना तो हो नहीं सकता। उससे यही मुराद है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी नया काम आता है उसमें हम खुदा ताला की तरफ तवज्जो करते हैं और कहते हैं कि ए खुदा, तू हम पर अपनी रहमत और फजल नाज़िल करो। और जो शख्स अपनी ज़िंदगी के हर नए काम में खुदा ताला से दुआ करेगा, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह कह लो, कपड़ा पहनने लगो तो बिस्मिल्लाह कहो, खाना खा लो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो,
नया कपड़ा पहन लो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो कि खुदा ताला ने ये कपड़ा मुझे पहनाया है। गोया आपने भी उस तरफ तवज्जो दिलाई है और बिस्मिल्लाह खुदा ताला को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का मौजिब है, और हर नई नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी खुदा ताला को मुतवज्जो करने के मुतरादिफ है। गोया हम कदम कदम पर खुदा ताला की तरफ तवज्जो करते हैं, और जब हम अपने हर काम में खुदा ताला की तरफ तवज्जो करेंगे तो लाजमी बात है कि खुदा ताला कहेगा कि मेरा ये बंदा तो कोई काम मेरी मदद के बगैर नहीं करना चाहता, और वो लाजमन उसकी मदद करेगा। फिर दूसरा फिक्रा है और उसकी रज़ा की जुस्तजू करते हैं, उसको पहले फिक्रा के साथ मिलाएं तो उसके ये माने हो गए कि हम हर काम में देख लेते हैं कि उसमें खुदा ताला की रज़ा है या नहीं, और अगर हर काम के करते वक्त इंसान खुदा ताला से दुआ करें और हर काम के मुतालिक ये सोचे कि उसमें खुदा ताला की रज़ा है या नहीं, तो सीधी बात है कि उसकी कामयाबी और उसकी दुआओं की कबूलियत में कोई शुबा नहीं हो सकता। क्योंकि जो शख्स खुदा ताला की रज़ा के लिए कोई काम करेगा, ये किस तरह हो सकता है कि खुदा ताला उसकी मदद ना करे? वो तो खुदा ताला का काम हो गया, बंदे का काम हो तो खुदा ताला कह भी सकता है। बस हमारी जमात को चाहिए कि वो कदम कदम पर दुआएं किया करें। हम थोड़े हैं और हमारी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिड़िया बाज के सामने होती है। बाज जब चाहे हमला करके इस चिड़िया को मार डाले। हमारे बचाव का इस दुनिया में भी और अगले जहां में भी एक ही जरिया है कि अल्लाह ताला की तरफ हमारी तवज्जो हो जाए। जैसे कुरान करीम में आता है, यानी तुम खुदा ताला को मुतवज्जो करते हुए और दुआएं करते हुए जिस तरफ भी जाओगे उधर उधर ही खुदा ताला जाएगा और वो तुम्हारी मदद के लिए आया हुआ होगा। तो ये नुस्खा जो हज़रत मुस्लिम मौत ने हमारे सामने पेश किया है, उसको लाजमन अपनी ज़िंदगी में अमल करें। जिस तरह खुतबा जुमा में बार बार हुजूर हमें तवज्जो दिलाए हैं कि पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर और अलजायर में जो मुश्किलात पेश हो रहे हैं उनके लिए दुआ करें। तो ये उनमें से एक नुस्खा है जो हमें अमल करना चाहिए, ताकि अगर हम इकट्ठे दुआ करें, इस अंदाज में दुआ करें कि अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला की रज़ा को जुस्तजू करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला करें कि हम इन नसाए पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और आखिर पर मैं हज़रत मुस्लिम मौत का एक नसीहत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हज़रत मुस्लिम मौत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप लोग जो मेरे इस ऐलान के मुसद्दिक हैं, आपका अवलीन फ़र्ज़ ये है कि अपने अंदर तब्दीली पैदा करें और अपने खून का आखिरी कतरा दीन हक और अहमदियत की फतह और कामयाबी के लिए बहाने को तैयार हो जाएं। बेशक आप लोग खुश हो सकते हैं कि खुदा ने इस पेशगोई को पूरा किया, बल्कि मैं कहता हूँ कि आपको यकीनन खुश होना चाहिए, क्योंकि हज़रत बनी सिलसिला अहमदिया ने खुद लिखा है कि तुम खुश हो और खुशी से उछलो कि उसके बाद अब रोशनी आएगी। बस मैं तुम्हें खुश होने से नहीं रोकता, मैं तुम्हें उछलने कूदने से नहीं रोकता। बेशक तुम खुशियां मनाओ और खुशी से उछलो और कूदो, लेकिन मैं कहता हूँ इस खुशी और उछल कूद में तुम अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश मत करो। जिस तरह खुदा ने मुझे रोया में दिखाया था कि मैं तेजी के साथ भागता चला जा रहा हूँ और ज़मीन मेरे पैरों के नीचे समेटती जा रही है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इल्हामन मेरे मुतालिक ये खबर दी है कि मैं जल्द जल्द बढ़ूँगा। बस मेरे लिए भी मुकद्दर है कि मैं सुरअत और तेज़ी के साथ अपना कदम तरक्यात के मैदान में बढ़ाता चला जाऊँगा, मगर उसके साथ
आप लोगों पर भी फ़र्ज आयद होता है कि अपने कदम को तेज़ करें और अपनी सुस्त रूई को तर्क कर दें। मुबारक है वो जो मेरे कदम के साथ अपने कदम मिलाता है और सूरत के साथ तरक्यात के मैदान में दौड़ता चला जाता है। और अल्लाह ताला रहम करें उस शख्स पर जो सुस्ती और गफलत से काम लेकर अपने कदम को तेज नहीं करता और मैदान में आगे बढ़ने की बजाय मुनाफिकों की तरह अपने कदम को पीछे हटा लेता है। अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों को सही तौर पर समझते हो, तो कदम ब कदम और शाना ब शाना मेरे साथ बढ़ते चले आओ। अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे तकरीर को ख़त्म करने से पहले आप सब से मैं अज्जाना दरख्वास्त करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड के बावजूद भी हमें अपना प्रोग्राम में अभी रोका नहीं है, जिस तरह अभी हम मुनाकद कर रहे हैं ऑनलाइन की तरफ के ज़रिया से। इसी तरह नेशनल की तरफ से भी जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे हफ्तावार ऑनलाइन तरबियत प्रोग्राम जो हैं, आप सब से गुजारिश है कि उसमें हिस्सा लें, क्योंकि उसमें तमाम मुरब्बियान ने जो उसमें क्या है मवाद तैयार किया है, वो बड़ी मेहनत के साथ तैयार करते हैं और एमटीए वालों भी अपने कीमती वक्त को क्या है इस्तेमाल करके उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मेहनत किया है। तो इसीलिए तमाम अहबाब जो रवांग में ख़ास तौर पर रहते हैं, आप सब से दरख्वास्त है कि ज़रूर उस प्रोग्राम में हिस्सा लें। और इसी तरह जो मकामी सतह पर जिस तरह आज हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुबारक है जो इसमें हिस्सा लें, और जो आज हिस्सा नहीं लेते तो उनसे गुजारिश है आपने सब लोगों को बताना है, सब अहमदियों को बताना है कि इसका रिकॉर्डिंग भी है। अगर बराह रास्त उसमें शामिल नहीं हो सकते तो रिकॉर्डिंग में भी उसको देख सकते हैं, इस्तेफादा कर सकते हैं। तो यही है मैं जो आप सब से अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को जमात की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा जमात के प्रोग्राम से भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दाना व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा।